অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদৰ অনুমোদিত বজাৰ দৰ এনেধৰণৰ ফাটক বজাৰত পটলৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ১৭০০ টকা আৰু অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ২০০০ টকা, কোমোৰা ১৯০০ টকা ২৫০০ টকা, তিয়ঁহ ১০০০ টকা ১৪৫০ টকা, ভেন্দিৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ১৩০০ টকা আৰু অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ১৫০০ টকা। বৰমা বজাৰত বিলাহীৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ১৩০০ টকা আৰু অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ১৭০০ টকা, লেচেৰা ২০০০ টকা ২৩০০ টকা, বন্ধাকবি ৮০০ টকা ৯০০ টকা, মাটি দাইলৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ৭০০০ টকা আৰু অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ৭৫০০ টকা। লংকা বজাৰত পিঁয়াজৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ২৩০০ টকা আৰু অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ২৬০০ টকা, ফুলকবি ৭০০ টকা ৯০০ টকা, তিতা কেৰেলা ২৩০০ টকা ২৭০০ টকা, আদাৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ৫০০০ টকা আৰু অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ৫৫০০ টকা। হাউলি বজাৰত কেঁচা জলকীয়াৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ২২০০ টকা আৰু অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ২০০৮ টকা, ৰঙালাও ১০০০ টকা ১২০০ টকা, গাজৰ ১০০০ টকা ১৪০০ টকা, জিকাৰ ন্যূনতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ১৪০০ টকা আৰু অধিকতম মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ১৫০০ টকা। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পোৱা বতৰৰ আগলি বতৰা অনুযায়ী গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ বতৰ ঘাইকৈ ফৰকাল হৈ থাকিব। বতাহ প্ৰতি ঘণ্টাত ৬ কিলোমিটাৰ বেগেৰে বলিব। আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা ৬৫% ভিতৰতে থাকিব। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। আমাৰ দেশৰ কৃষি ব্যৱস্থাই এক নতুনত্ব পাবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু অত্যাধিক বহি উৎসৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰে গছ-গছনি ধ্বংস কৰা, পানীৰ নাটনি, ভূমিৰ অৱক্ষয় আৰু গ্ৰীণহাউছ গেছ নিৰ্গমনৰ দৰে জটিল সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। অনুকূল জলবায়ুৰ বাবে ধাৰণশীল কৃষিৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন হৈ উঠিছে। আমি আচলতে কিহৰ বাবে ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ? ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে উদ্ভিদৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে মুঠ 108 বিধ মৌলৰ আৱশ্যক। ইয়াৰে 16 বিধ মৌলক মুখ্য মৌল হিচাপে গণ্য কৰা হয়। কিন্তু উদ্ভিদৰ শৰীৰত থকা প্ৰধান মৌলকেইবিধ হৈছে কাৰ্বন, হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন। উদ্ভিদৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো মৌল মাটিত থাকে, কিন্তু বিশেষ কিছু কাৰণত সেইবোৰ মৌল মাটিৰ পৰা গছে পাব পৰা অৱস্থাত নাথাকে। মাটিত থকা কোটি কোটি অণুজীৱইহে এইবোৰ মৌলক গছে পাব পৰা অৱস্থালৈ আনে। কিন্তু দুখৰ কথা যে ৰাসায়নিক কৃষিত ব্যৱহৃত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যসমূহে অণুজীৱসমূহ মাৰি পেলায় অথবা খেদি পঠিয়ায়, যাৰ ফলত অধিক উৎপাদনৰ আশাত কৃষকসকলে বছৰি সাৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে। প্ৰাকৃতিক কৃষিত মাটি সম্পূৰ্ণ হিউমাছেৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে। এনে অৱস্থা এটাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে শ্ৰী শ্ৰী ইনষ্টিটিউট অৱ এগ্ৰিকালচাৰেল ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি চমুকৈ SSIASTৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰভাকৰ ৰাৱে এনেদৰে কয়। आज हम ये देख रहे हैं इधर कि हम कृमि कीट का कंट्रोल कैसे करते हैं प्राकृतिक खेती में। देखिए, हमारी रासायनिक खेती में जब कोई कृमि कीट आता है, कोई कीड़ा आता है अपनी खेत पे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके तुरंत हम लोग पेस्टिसाइड मार देते हैं या कुछ वीडीसाइड, नेमेटिसाइड कुछ तो हम मार देते हैं ताकि वो कीड़ा मर जाए, है ना, वो मर जाए और हमारी खेत बच जाए। ये हमारा एक सोच रहता है। लेकिन अपने इसके एक बहुत बुरा प्रभाव क्या होता है कि जब हम लोग पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं और कीड़े को मारने की चेष्टा करते हैं,
तो वो कीड़ा अंदर से उसका रेजिस्टेंस जीन्स बदल के वो पेस्टिसाइड के रेजिस्टेंस ले लेता है, मतलब वो पेस्टिसाइड उसको मार नहीं पाता है। इसकी वजह से वो पेस्टिसाइड का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, तो हम दोबारा एक और खतरनाक पेस्टिसाइड तैयार करें और खतरनाक पेस्टिसाइड तैयार करें। ऐसा चल रहा है पिछले 40-50 साल से, यही चल रहा है अपनी रासायनिक खेती में। तो इसकी वजह से जो हम उत्पादन है हमारे खेत से जो निकलते हैं उसमें बहुत सारी टॉक्सिक रेजिड्यूज भरे रहते हैं, जिसकी बुरा प्रभाव हमारी शरीर और अपना परिवार पे होता है। अपनी प्राकृतिक खेती में हमारा सोच ही अलग है। हमारे ये सोच है, ये विशाल सोच है कि कीड़ा भी ईश्वर का ही प्राणी है, सृष्टि है, इट इज ए डिवाइन क्रिएशन। तो ये हम एक ऐसा उपाय करते हैं कि कीड़ा और मानव दोनों साथ जिए। हमारा कोशिश ये नहीं है कि कीड़ा को मारने का है, कीड़ा को रिपेल करने का है, यानी हमारी खेत पे ना बैठे, कहीं और बैठ के उसका जिंदगी गुजारे, ये सिद्धांत है, ये सोच है। तो सारी हमारी खेती बाड़ी में सारा जो कृमिकीट है, कीड़ा है, उनको 3 किस्म की कैटेगरीज में हम डाल सकते हैं। एक होता है जो कीड़ा आता है, बैठता है, खाता है और चला जाता है। दूसरा आता है, बैठता है, फिर उसका अंडा रखता है उधर, फिर अंडे से लार्वे आएगा, लार्वे भी खाएगा, फिर उसका प्यूपा होएगा, यानी पूरा उसका जीवन चक्र जो है वो प्लांट पे होता है। और तीसरा टाइप का कीड़ा होता है जो आते ही अंदर घुस जाता है, जड़ में घुस जाता है, स्टेम में घुस जाता है, फल में घुस जाता है, पत्ते में घुस जाते हैं। इनको जो है बोरर्स बोलते हैं, स्टेम बोरर, लीफ माइनर, रूट बोरर, फ्रूट बोरर, ऐसी 3 किस्म की अपने कीड़े हैं और कोई चौथा किस्म नहीं है। ये सभी कीड़े जो है इसी में आते हैं। इसके लिए 3 टाइप के अस्त्र हम बनाते हैं। एक है नीम अस्त्र, एक है ब्रह्मास्त्र और एक है अग्नियास्त्र। नीम अस्त्र क्या होता है? देखिए, नीम के पेड़ में आपको कोई कीड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पत्ता इतना खट्टा है, हाँ, क्योंकि एक केमिकल है उसमें, ऑर्गेनिक केमिकल जिसका नाम है एज़ोडरेक्ट। वो केमिकल की वजह से इतना खट्टा हो जाता है कि वो कीड़ा बैठता नहीं है, वो कहीं और चला जाता है। तो वो नीम के पत्ते से हम नीमास्त्र बनाते हैं, तो पहले किस्म का कीड़ा उसमें कंट्रोल आ जाता है। मतलब जो आता है, बैठता है, खाता है, जाता है, वो किस्म का कीड़ा नीमास्त्र कंट्रोल करता है। फिर जो आके पूरा उसका जीवन चक्र जो निभाने का है, वो किस्म का कीड़ा कैटेगरी 2 टाइप, वो उसको हम ब्रह्मास्त्र बनाते हैं। तो ब्रह्मास्त्र का मतलब हम एक 8-10 टाइप का पत्ते लेते हैं, जैसे सीताफल होता है, अनार होता है, पपाया होता है, दत्तूरा होता है, ऐसी 7-8 पत्ते का किस्म के पत्ते लेके उसको अच्छा सा कूट के हम गोमूत्र में उसको उबलाते हैं और एक अर्क बनाते हैं। और ये जो है हम सेकंड कैटेगरी यानी दूसरा किस्म का कीड़ा जो आते हैं, पूरा उसका लाइफ साइकिल पत्ते पौधे पे चलाता है, उसके कंट्रोल में। और तीसरा अग्नियास्त्र, अग्नियास्त्र हम बनाते हैं लहसुन, मिर्ची और तंबाकू के पत्ते से। और इसका इतना एक घाट होता है, पंजेंसी होता है कि अंदर जो घुसा हुआ है कीड़ा वो भी बाहर आके चला जाता है। तो 3 किस्म की कीड़े, 3 अस्त्र। नीमास्त्र पहले किस्म के लिए, ब्रह्मास्त्र दूसरे किस्म के लिए और अग्नियास्त्र तीसरा किस्म के लिए। देखिए कितना सरल है। प्राकृतिक কৃষি হৈছে দেশী গাই গৰুৰ আধাৰত গঢ়ি উঠা এক কৃষি। জৈৱিক কৃষিত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ গোবৰৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাকৃতিক কৃষিত এজনী দেশী গাইৰে 100 বিঘা মাটিৰ বাবে আৱশ্যকীয় অনুজীৱ মাটিত যোগান ধৰিব পাৰি। শুনিব আচৰিত লাগিলেও বিজ্ঞানে প্ৰমাণ কৰিছে যে 1 গ্ৰাম দেশী গাই গৰুৰ গোবৰত 300 পৰা 500 কোটি পৰ্যন্ত অনুজীৱ থাকে। আৰু এই অনুজীৱবোৰে মাটিৰ পৰা গছত আৱশ্যকীয় মৌলৰ যোগান ধৰে। গৰু গোবৰ আৰু গোমূত্ৰৰ পৰা প্ৰাকৃতিক কৃষিত প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। ইয়াৰে প্ৰথমবিধ হৈছে বীজামৃত। বীজামৃত প্ৰস্তুতিৰ বাবে কেঁচা গোবৰ 5 কিলোগ্ৰাম আৰু এদিন পুৰণি গোবৰ 15 কিলোগ্ৰাম, 15 লিটাৰ গোমূত্ৰ, 50 গ্ৰাম চূণ, 20 লিটাৰ পানী
25 লিটাৰৰ এটা বাকেট আৰু এমুঠি মাটি ল'ব লাগে। ইয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা বীজামৃত সম্পৰ্কে SSIASTৰ সমল ব্যক্তিসকলে কৃষি বিভাগৰ বিষয়াসকলক এনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰাই দেখুৱায়। গোবৰখিনি প্ৰায় আধা পানী ডুব যোৱাকে থব লাগিব, 12 ঘণ্টাৰ বাবে থব লাগিব, যাতে গোটেই ৰসখিনি পানীত আহি যাওক আৰু এক্সট্ৰাখিনি থাকি যাব। এইটো পানী তেনেকুৱা ডুবাই থব আধা বা আধা পুৰা, যাতে এই টোপোলাটো খোল খাই গোবৰখিনি বিয়পি যাব নালাগে, তাৰ ৰসখিনি অকল পানীত আহিব, সেইটো কাৰণে। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো প্ৰথম দিনৰ প্ৰিপেৰেশ্যন। তাৰপিছত চূণ তিয়াবৰ কাৰণে আমাক লাগিব পানী এক্সট্ৰা, আৰু এই চূণটো হয় চূণ ইমান নালাগে, অলপ কম। এইটো চূণ হয়, চূণ পানীত তিয়াই থব লাগিব আৰু এইটো বেলেগে থব লাগিব, একলগে সেইটো পানীতে নহ'ব। হয়, খোৱা চূণটো আমি ঘৰত যি চূণ ব্যৱহাৰ কৰে, পানত যিটো ব্যৱহাৰ কৰে। लैंड जो जनरली मिट्टी हमारा बहुत उसका pH ये नहीं होता है या एसिडिक होता है, तो इसको जो प्रोटेक्शन के लिए जो कीट पतंग ये सब जो नीचे जो कीड़ा खा सकता है, बहुत बार तो सीड को कीड़ा खा जाता है ना, बहुत सारा सीड का ये भी होता है, तो लाइन डालते हैं जिससे कि वो प्रोटेक्ट हो जाता है, जमीन के अंदर जब जाता है। हाँ, ये 50 ग्राम। इसको भी तो 50 ग्राम मतलब उसका रेशियो अलग अलग है, छोटा कम बड़ा मतलब সৰু বা বেছি পৰিমাণত বনালে ৰেচিঅ'টো সমানেই থাকিব, লিটাৰটো কম বেছি হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ গৌমূত্ৰ আহি গ'ল, আৰু নেক্সট ডেৰ কাৰণে আকৌ ফ্ৰেছ গোবৰ লাগিব। প্ৰথম দিন এইটো তিয়াই থোৱাৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ এইটো চেপি ৰস ওলাই ল'ম, ৰস ওলাই ইয়াৰ ৱেষ্ট যিটো থাকিব এইটো ওলাই দিলোঁ। নেক্সট ডেত আকৌ আপোনাৰ 5 কেজি ফ্ৰেছ গোবৰ মিলাই লৈ চূণ পানী মিলাই লৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু তাৰপিছত আমি সেইটো বীজ ট্ৰিটমেণ্ট বীজ সংস্কাৰ কৰিব পৰা যাব। মানে এই যিটো আমি প্ৰথম দিনা 5 কেজি গোবৰ পানীত তিয়াই থলোঁ, তিয়াই থৈ ইয়াৰে কি কৰিম আমি ফাৰ্ষ্ট ডে ইয়াতে যিটো মানে যাব না, ইয়াৰ পৰা চেপি ওলাই ল'ব, চেপি ইয়াৰে গোটেইখিনি মানে পানীত মিল হৈ যাব। নেক্সট ডে ছেকেণ্ড ডে আমি আকৌ 5 কেজি গোবৰ ল'ম, লৈ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি কৰিম। তাৰপিছত এইটো আৰু চেপি ইয়াৰে ৰসখিনি গোটেই উলিয়াই ৰাখিম। তাৰপিছত আমি চূণটো তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, চূণটো ইয়াতে মিলাই দিম, আৰু গৌমূত্ৰটো ইয়াতে আমি মিলাই দিম। মিলাই দিয়াৰ পিছত 50 গ্ৰাম মিলাই দিয়াৰ পিছত এইখিনি আমাৰ বীজবিলাক শুদ্ধীকৰণ কৰাৰ কাৰণে সাজু হৈ গ'ল, বীজবোৰ শুদ্ধিকৰণ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি তাৰপিছত বীজবিলাক আমি লগাব পাৰিম। তেনেকুৱা তো তাৰো প্ৰপৰ্শ্যন আছে, বীজ অনুসৰি আমি লগাব লাগিব। ধৰক সৰু কিছুমান কোমল বীজ থাকে, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ হ'ব আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা তিয়াই থ'লে বা স্প্ৰে কৰি দিলে, যাতে ধুনীয়াকৈ সলিউশ্যনটো তাত বীজৰ লগত মিলি যাব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ ছাঁত শুকাই থ'লে তাৰপিছত এইটো সিঁচিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যায়। তাৰপিছত আপোনাৰ কিছুমান আছে 1 ঘণ্টা তিয়াই থ'ব লাগিব, কিছুমান আছে 2 ঘণ্টা, কিছুমান 6 ঘণ্টালৈকেও তিয়াই থোৱাৰ আছে, বীজ অনুযায়ী সেইটো লগাব লাগিব। বীজামৃত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বীজ শোধনৰ বাবে। বীজামৃতেৰে শোধিত বীজ কোনো অৱস্থাতে ভেঁকুৰ নতুবা আন বীজাণুৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব নোৱাৰে। গাই গৰুৰ গোবৰ, গোমূত্ৰ আদিৰে পথাৰত অণুজীৱৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা আন এবিধ সামগ্ৰী হৈছে জীৱামৃত। জীৱামৃত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ হৈছে 10 কিলোগ্ৰাম গৰুৰ কেঁচা গোবৰ, 5 পৰা 10 লিটাৰ গোমূত্ৰ, 2 কেজি বেচন, গুড় 1 কেজি, এমুঠি মাটি আৰু 200 লিটাৰ পানী। জীৱামৃতৰ আৱশ্যকীয়তা আৰু প্ৰস্তুত প্ৰণালী সম্পৰ্কে SSIASTৰ বিশেষজ্ঞসকলে কৃষি বিষয়াসকলক এনেদৰে কয়। পানী, গৌমূত্ৰ, গোবৰ, দেশী গুড় লাগিব, বেচন বা যিকোনো আপুনি পাল্চ ফ্ল'ৰ ল'ব পাৰে, খালি চয়াবিন হ'ব নালাগে। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আহি গ'ল 1 মুঠি আপোনাৰ পথাৰৰ মাটি যিটো থাকে বা গছৰ গুৰি বা পুখুৰীৰ মাটি 1 মুঠি লাগিব। আচলতে ইয়াতে আপোনালোকৰ 20 লিটাৰৰ দেখুওৱা হৈছে। আচলতে আমি 1 একৰ মাটিৰ কাৰণে 200 লিটাৰ পানীত কৰিব লাগে, কিন্তু আমি আজি সৰু ন, সেইকাৰণে আপোনাৰ 20 লিটাৰ পানীত কৰিছোঁ। বেচন আমি দিব লাগিব, গুড় দিব লাগিব, আৰু গৌমূত্ৰ আৰু গোবৰ দিব লাগিব। ইয়াতে পৰিমাণটো 200 লিটাৰৰ হিচাপত লিখি থোৱা আছে। 20 लीटर में अगर हमने पूरा बनाया ठीक से, बाद में उसको हमने
हाँ, इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। ये भी 200 लीटर से तो सिंपल बात है, 200 लीटर से 1 एकड़ जमीन में कुछ नहीं होगा। 200 लीटर को आप कम से कम 1000 लीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे और वो 1000 लीटर इसको डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इसको हम डाइल्यूट करके डालेंगे 1000 लीटर में मिला के उस पानी में मिला। जनरली इसको जैसे अगर आपको लगता है कि जैसे शुरू वाला ये होता है तो हम जनरली उसको जो ये वाटर होता है जो जिसे इरिगेशन करते हैं उसमें पाइप मिला देते हैं और चला जाता है। दूसरा अगर सेकंड टाइम हम डालते हैं तो इसको लगता है कि नहीं हमको पत्तों पे और इस पे डालना है, जबकि वो उसका मतलब फल ये निकलना बर्डिंग शुरू होता है तो हम उसको स्प्रे करते हैं। मतलब इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि इसको रूट में ही डाल सकते हैं, इसको जमीन से, रूट से, इसके स्टेम से, लीफ से, सब पे आप डाल सकते हैं। सबके डालने का समय भी अलग अलग, जब इसका कोर्स मटेरियल मिलेगा तो आप देखेंगे कि किस समय, जैसे कि धान का जब ये लेना शुरू हो जाता है, जब धान में छोटा छोटा धान आना शुरू हो जाता है, मैं अपने लैंग्वेज में बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं ऐसे वाले, तो वो छोटा छोटा जब आना शुरू होता है ना तो उसके फलों को, उसके दानों को पुष्ट करने के लिए भी इसका जब हम डालते हैं, स्प्रे करते हैं तो उसके दाने जो है ज्यादा अच्छे पुष्ट होते हैं, मतलब अच्छा दाना होता है। जो धान में खखड़ी हम बोलते हैं ना, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, जो हाँ जिसमें कि कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही हो जाता है, तो उसका नंबर ऑफ वो बहुत काफी कम हो जाता है अगर स्प्रे आप करते हैं। और इसी तरह पंचगव्या का भी स्प्रे करते हैं तो आपका जो फ्रूटिंग और इसका क्वालिटी जो होता है वो काफी अच्छा होता है। इनफैक्ट कुछ चीजों में ऐसा देखा गया है कि जब आप इस तरह से आप डालते हो तो जैसे कि आजकल क्या होता है कि फसल का ड्यूरेशन ज्यादा होता है तो लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं कि अगला लगाना है, काटो, तो मैच्योरिटी भी ना 1-2 वीक पहले अच्छे से हो जाता है। मतलब अच्छा न्यूट्रिशन मिला तो कैसे, तो बच्चों का ग्रोथ अच्छा होता है, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, तो वही बिल्कुल वैसा ही है कि आप ठीक से खिलाते पिलाते, अच्छा न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी नहीं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अगर अपने जमीन को आप देते हैं तो आपका फसल काफी अच्छा होता है। तो ये जो नेचुरल फार्मिंग है, इट इज अ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी फॉर द। জীৱামৃত হৈছে মাটিৰ অণুজীৱবোৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ অন্যতম উপায়। পিছে এইবিধ সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব নোৱাৰি। দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি খেতিৰ সময়ত প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হ'লে জীৱামৃতৰে আন এটা ৰূপ হৈছে ঘন জীৱামৃত। এইটো আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো হৈ আছে, বনাই আছে, আৰু এইটো আমাৰ 3 দিনৰ তৈয়াৰ হৈ যায়। প্ৰথম 2 দিন কেনেকৈ এনেকৈ লাৰি থাকিব লাগিব, লাৰি অলপ ঢাকি ৰাখিব লাগিব, দিনত 2বাৰ কৰিলে যথেষ্ট হৈ যায়। আৰু 3 দিনৰ দিনা হ'ব কি হ'ব, সেইটো উপযুক্ত হৈ গ'ল। আৰু 3 দিনৰ দিনা আমি কি কৰিম, সেইটো 3 দিন হৈ গ'ল যেতিয়া, এইটো আমি কি কৰিম, এনেকৈ লাৰু তৈয়াৰ কৰিম। লাৰু তৈয়াৰ কৰি আমি কি কৰিম, এইটো ছাদ শুকাম, ৰ'দত নহয়। এই ছাদ শুকালে কি হ'ব, আমাৰ ইয়াত যিবিলাক খেতিৰ কাৰণে সূক্ষ্ম জীৱাণু দৰকাৰ জীৱৰ কাৰণে, সেইটো ছাদ শুকাই থাকে, ইয়াত কনজিউম হৈ ভিতৰত সোমাই থাকে। এনেটা আমি এটা 6 মাহলৈকে এইটো আমাৰ মেদ থাকিব। আপোনালোকে ঘৰত বনাই 6 মাহলৈকে ৰাখিব, কিন্তু ছাদ ৰাখিব যাতে ৰ'দ নাপায়। আৰু এইটো 6 মাহ পিছত আমি ইয়াৰ গুণটো থাকিব, কিয়নো ইয়াৰ ভিতৰত যিবিলাক আমাৰ সূক্ষ্ম আছে সেইখিনি আমাৰ জীৱিত হৈ থাকিব। ইয়ে আমাৰ যিবিলাক খেতিত আছে আগৰ, সিহঁতৰ লগত দোস্তি বনাই কি কৰিব আৰু দুগুণা শক্তি বঢ়াই আমাৰ কি খেতিত কাম কৰিব, উদ্ভিদৰ কাৰণে পুনৰ্জীৱিত কৰিব, অমৃত ব্যৱহাৰ কৰিব। এই যে জীৱাম ঘন এইটো আৰু এইটোত অধিক লাভ হয় আৰু বেছি ইয়াত খৰচ নপৰে। আমি ঘৰতে সকলোৱে বনাব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে বেছি টাইমো নালাগে। গতিকে আপোনালোকে এইটো ঘৰৰ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব। ফুলনিত অলপ হোম গাৰ্ডেনিং কৰে, কিচেন গাৰ্ডেনিং কৰে, তাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো আমালোকৰ কাৰণে কি, কেতিয়াবা শকত আৰু আমি কি কৰোঁ না, এই খেতি চেতি কৰোঁ, ঘৰত চপি কৰোঁ না, এইটো ৰাখিব। এইটো শুকাই যোৱাৰ পিছত কৰিব পাৰিব। 3 দিন হ'লে এইটো শুকাই, তাৰপিছত এইটো পাই যাব, শুকাই যাব, শুকালে হ'ব। আৰু যেতিয়া ৰাখি দিব, এইটো ৰাখি দিলে থাকি যাব, যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব এইটো ভালকৈ পাউডাৰ বনাই ল'ব। এতিয়া কথা হ'ল কি, এতিয়া আমি খেতি পথাৰত সেইটো কেনেকৈ দিম, হয় না? আমি যিবিলাক খেতি কৰিম, খেতি কৰাৰ কাৰণে সেইটোত কেনেকৈ দিম, যে আমি এইটো 1 একৰৰ কৰিছোঁ, 1 একৰৰ কৰিছোঁ, তাহলে আমি কি কৰিছোঁ, 1 একৰত কিমান হ'ব, 100 কেজি আছে, 100 কেজি এইটো ঘন জীৱামৃতত আমি বনাইছোঁ নহয়, আমি এইখিনি ক'ত দিম, আমি দিব লাগিব। আপুনি প্ৰতি
100 কেজি 10 কেজি মিলাব এই গুড়াটো গোবৰটো শুকান গোবৰ মিলাই পেলাই ছিটাই দিব বা ডাইৰেক্ট দিব পাৰে পানীত দিব পাৰে অলপ হাতত পৰি যাব পাৰে না ছিটাই দিব পাৰে। ঘন জীৱামৃত তৈয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ হৈছে 100 কিলোগ্ৰাম কেঁচা গৰুৰ গোবৰ, 2 কিলোগ্ৰাম গুড়, 2 কিলোগ্ৰাম বেচন আৰু এমুঠি মাটি। ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীখিনি 6 মাহ পৰ্যন্ত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি। এই বিষয়ে আৰু প্ৰস্তুত প্ৰণালী সম্পৰ্কে এনেদৰে বুজাই দিয়ে। बीजामृत मतलब जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि बीजों के लिए ये अमृत के समान काम करता है। इसमें हम ना सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर जमीन में आप डालते हैं, पहले से आपके लैंड में कोई इन्फेक्शन है या कुछ है या बहुत बार कीट पतंग खा जाते हैं, तो इस प्रोसेस में हम गोबर, गौमूत्र, थोड़ा सा चूना भी डालते हैं, सबको मिला के बनाते हैं और उस प्रक्रिया से बीजों को हम ट्रीट करते हैं। उससे हम बीज को भी ट्रीट करते हैं और बहुत बार जो सैपलिंग्स होती है, सैपलिंग्स को भी जैसे आप केमिकल फार्मिंग में लोग बेविस्टीन और बाकी अलग अलग चीजों में डालते हैं, हम वो सब कुछ नहीं करते। हम उसके साथ बीजामृत में उसको डिप करते हैं और उसके बाद उसको जमीन में लगाते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो जमीन में इंस्टेंट वहां पे हम उसको साथ में माइक्रोब्स का एक डोज दे देते हैं, साथ में एक प्रोटेक्शन दे देते हैं बीजामृत के थ्रू। फिर उसके बाद जब हम फसल उगाते हैं या जब हमारा वो अंकुरित हो गया या 4-5 इंच का हो गया, तो हम जीवामृत का उसमें छिड़काव करते हैं। जीवामृत का मतलब क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ में ही 108 एलिमेंट्स हैं और 108 एलिमेंट्स को ब्रेक करके ही प्लांट्स खाते हैं। तो क्या ऐसा चीज है जिससे कि वो जमीन में है और पौधों तक नहीं पहुंच रहा है? तो मुझे भी लगता है कि अगर हम धान का प्लेट आपको एक दे दें और बोले खा जाओ, तो नहीं खाओगे। उसको पहले कूटोगे, चावल बनाओगे, पकाओगे और खाओगे। तो यहाँ पे खाना बनाने वाले की कमी है, उसका हम सप्लाई करते हैं, उसको हम डालते हैं माइक्रोब्स के थ्रू। जनरल भाषा में मैं समझा रही हूँ कि अगर मिट्टी में माइक्रोब्स का नंबर ज्यादा है तो वो मिट्टी में पड़े हुए जो भी एलिमेंट्स है, सॉल्ट हैं, उसको ब्रेक करके एक न्यूट्रिशन देते हैं प्लांट को, और प्लांट उसके बदले पौधों को एक शुगर का एक यूनिट देती है। तो एक बड़ा सिम्बायोसिस ये है, इस तरह से करते हैं। और जितना नंबर ऑफ माइक्रोब्स है, मतलब कि जितने तरह के प्लांट्स को जितने भी तरह के घटक की जरूरत है, वो सबको ब्रेक करके प्लांट को सॉल्युबल फॉर्म में पहुंचाते हैं। इसलिए हमारा नेचुरल फार्मिंग में एक सबसे बड़ा काम होता है कि जमीन को की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उसमें नंबर ऑफ माइक्रोब्स थ्रू जीवामृत, थ्रू घन जीवामृत और भी बहुत सारे बायो फॉर्मुलेशन है जो हम बनाते हैं प्राकृतिक देसी गाय से। और देसी गाय ना हो तो भी बाकी बफलो और इसके से भी प्रपोर्शन सिर्फ अलग अलग होता है, उससे ये बना के हम डालते हैं। तो ये सेकंड चरण हो गया। और थर्ड चरण हमारा है कि पेस्ट कंट्रोल। ऐसे तो मेरा अपना अनुभव है कि अगर 2-3 साल आप कंटिन्यूअस नेचुरल फार्मिंग करने लगते हो तो पेस्ट अपने आप ही मैनेज हो जाता है, क्योंकि हम नेचुरल फार्मिंग में पेस्टिसाइड या पेस्ट को मारते नहीं, हम कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। तो एक सिस्टम बन जाता है आपके फार्म पे, आपकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इवन तभी भी आपको जरूरत पड़ता है तो उसको हम ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से कुछ बायो फॉर्मुलेशन बनाते हैं, जिसमें हम ऐसी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं जिस पत्तियों को गाय, बकरी ये सब नहीं खाती है। प्रकृति ने बहुत सुंदर से इसको बैलेंस करके बनाया है। उसमें हम उस तरह की पत्तियों को लेते हैं और उसमें हम गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। गौमूत्र का इस्तेमाल करने का एक कारण है कि गौमूत्र इज द बेस्ट बायो सॉल्वेंट। उसमें बहुत अच्छे से उसका अर्क आ जाता है। इसके बनाने के कुछ प्रोसेस हैं। जब हमारी ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग में हम 3 तरह के अस्त्राज बनाते हैं। और अस्त्राज ही बनाता नहीं सिखाते, उसके साथ साथ हम उनको ये भी बताते हैं कि आप अपने कीट पतंगों को कैसे पहचानें। क्योंकि अगर आपको पता है ना कि मतलब अगर कुछ कीट पतंग आते हैं जो बैठते हैं, चले आते हैं, कुछ पूरा लाइफ साइकिल करते हैं, कुछ आपके पेड़ के रूट को खा के, तना को खा के जाते हैं, तो सबके लिए अलग अलग लेवल के बायो फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं इन पत्तियों को, गोबर को, गौमूत्र को इस्तेमाल करके, जो हम अपने कोर्स में बनाते हैं। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।